Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. In this video, we are going to understand the questions and answers of this chapter. प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, इस पाठ के क्वेश्चंस और आंसर्स समझेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझ करके क्वेश्चंस और आंसर्स लिखिए। So let's get started. Question number 1. What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? वे कौन सी दो अजीब चीजें थी जो गुरु और शिष्य को मूर्खों के राज्य में मिली? Answer. When the Guru and his disciple reach the kingdom of fools, they find the following two strange things. First, all the people sleep during the day and work during the night time. Second, the cost of purchasing anything from the market was the same, one dudu. Whether it was a measure of rice or a bunch of banana, it would cost the same. जब गुरु और चेला मूर्खों के राज्य में आते हैं तो निम्न दो चीजें उनको अजीब मिलती हैं। फर्स्ट, सब लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं। दूसरा, बाजार में हर सामान खरीदने का मूल्य एक ही है, एक डूडू। चाहे वह चावल की कोई मात्रा हो, चाहे केले का पूरा गुच्छा, सबका मूल्य या कीमत एक जैसा था, समान कीमत था। क्वेश्चन नंबर 2. Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? क्यों शिष्य मूर्खों के राज्य में ठहरने का निश्चय करता है? क्या यह निर्णय सही है? Answer. The disciple loves food. He gets excited to see such cheap food available in the kingdom of fools. As he wants to relish more and more food, he stays back in the kingdom of fools. His decision was not a good one as he got into trouble. Although he was innocent, the king's men took him for execution as they needed a fat person who could be killed easily by the stake. शिष्य को खाना से बहुत प्यार था। वह यह देखकर के बहुत उत्सुक था कि मूर्खों के राज्य में खाने के सामान बहुत ही सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं। वह खाने का बहुत ज़्यादा स्वाद लेना चाहता था, इस कारण से वह मूर्खों के राज्य में रुक जाता है। उनका यह निर्णय सही नहीं था क्योंकि वह इस निर्णय के कारण परेशानी में फंस जाता है। यद्यपि वह निर्दोष था, लेकिन राजा के आदमियों ने उसे पकड़कर राजा के सामने फांसी पर चढ़ाए जाने के लिए ले गए। फांसी के फंदे पर चढ़ाए जाने के लिए एक मोटे व्यक्ति की खोज करने के लिए राजा ने कहा था और शिष्य मोटा था, इस कारण से उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाए जाने के लिए वहां पर लाया गया। क्वेश्चन नंबर 3. Name all the people who are tried in the king's court and give the reasons for their trial. उन सब लोगों का नाम बताइए जिनकी राजा के दरबार में पेशी की गई और उनके परीक्षण का या पेशी का कारण बताइए। Answer. The names of the people who were tried in the king's court are as follows. First, the merchant whose house was burgled as the wall was weak and collapsed onto the thief and killed him. Second, the bricklayer who had built the weak wall was also tried for constructing the wall that collapsed and killed the thief. Third, the dancing girl was tried for distracting the bricklayer. As she walked in the lane again and again, the jingling sound of her anklets distracted the bricklayer, because of which he constructed a weak wall. Fourth, the goldsmith was tried because it was due to him that the dancing girl had to walk up and down the lane again and again. Fifth, the rich merchant's dead father was tried because he had ordered the goldsmith to deliver his ornaments first, as there was a wedding in his family. Sixth, the disciple was tried because merchant was too thin to be executed by the stake. निम्नलिखित लोगों को राजा के दरबार में पेशी की गई थी और उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। फर्स्ट, एक व्यापारी जिसके घर में सेंध लगाई गई थी क्योंकि दीवार कमजोर थी
और वह चोर पर गिर पड़ी और वह मारा गया। सेकंड, राजमिस्त्री की पेशी की गई जिसने दीवार बनाई और वह दीवार कमजोर थी और वह चोर पर गिर गया और चोर मारा गया था। थर्ड, नर्तकी जिसने राजमिस्त्री का ध्यान भटकाया जब वह दीवार पर ईंटों को चुन रहा था। फोर्थ, सुनार को राजा के सामने पेशी पर बुलाया गया क्योंकि उसने उस नर्तकी का काम समय पर नहीं किया और उसको सुनार के पास बार बार आना पड़ा। फिफ्थ, व्यापारी जिसके घर में सेंध लगी थी क्योंकि उसके पिता ने सुनार को अपना काम करके पहले देने के लिए बोला था और उसके घर में शादी समारोह था। शिष्य की पेशी राजा के सामने किया गया क्योंकि उस नए बने फांसी के फंदे पर व्यापारी को नहीं चढ़ाया जा सकता था क्योंकि वह बहुत दुबला पतला व्यक्ति था। सूली पर चढ़ाए जाने के लिए एक मोटे व्यक्ति की जरूरत थी। इस कारण से शिष्य को पकड़कर राजा के सामने लाया गया क्योंकि वह काफी मोटा था। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? राजा के अनुसार कौन असली दोषी है? वह सजा से कैसे बच जाता है? आंसर, according to the king, the real culprit was the merchant's dead father. As he was dead, he could not be punished, and in place of him, his son, who had inherited all his property, would be punished. The merchant escapes the punishment as the minister feels that he is too thin to be killed by the stake. राजा के अनुसार असली दोषी व्यापारी के पिताजी थे। उनका देहांत हो गया था, इस कारण से उनके स्थान पर व्यापारी के बेटे को, जो उसकी पूरी संपत्ति का मालिक था या उत्तराधिकारी था, उनको दंड दिया जाता। लेकिन वह दंड से इसलिए बच जाता है क्योंकि मंत्री को ऐसा लगता है कि वह फांसी के फंदे पर लटकाए जाने के लिए बहुत दुबला पतला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द गुरु's वर्ड्स ऑफ विजडम? When does the disciple remember them? गुरुजी के ज्ञान भरे शब्द क्या थे? शिष्य उन शब्दों को कब याद करता है? Answer, the Guru had told his disciple that the place was a kingdom of fools and was unsafe for them. He had asked his disciple to leave the place at once. The disciple is reminded of his Guru's words of wisdom when he lands into trouble. When the king's men take him for execution, he prays to his Guru and asks him to save his life. गुरु ने शिष्य से कहा था कि वह राज्य के मूर्खों का राज्य है और उनके लिए रुकना वहां असुरक्षित था। उसने चेला को तुरंत वह जगह छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन शिष्य वहीं रुक गया था। शिष्य को अपने गुरु की ज्ञान की बातें तब याद आती हैं जब वह परेशानी में फंस जाता है। राजा के सिपाही उसे फांसी की सजा देने के लिए राजा के सामने लाते हैं, तब वह गुरु से प्रार्थना करता है और उससे अपना जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करता है। Now let's go to the question number 6. How does the Guru manage to save his disciples' life? गुरु कैसे अपने शिष्य का जीवन बचाता है? Answer, the Guru is a wise man. He traps the foolish king in his talks. He says that he is the Guru, he is senior to his disciple, and so he should be killed first. The king gets confused to see the Guru's eagerness to die. He asks him the reason for it. On being promised that he would be killed first, the Guru says that as the stake is new one, it has not killed any criminal. He adds that the person who would be killed first would be reborn as the king, and the second person would be killed would be reborn as the minister of the kingdom. The king considers the Guru to be genuine and
tells his minister that they should not lose their kingdom in the next birth. The king decides to save his kingdom and get himself and his minister killed by the stake in place of the Guru and his disciple. Hence, the Guru saves his disciple's life. गुरु बुद्धिमान व्यक्ति था। वह मूर्ख राजा को अपनी बातों में फंसा लेता है। वह कहता है कि वह गुरु है, वह चेला से वरिष्ठ है, इस कारण से सबसे पहले उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। राजा हैरान हो जाता है कि क्यों गुरु इतना उत्सुक है सबसे पहले मरने के लिए। वह उसका कारण पूछता है। गुरु आगे बताता है कि इस नए फांसी के फंदे से किसी व्यक्ति को अभी तक नहीं मारा गया है और इस फंदे के द्वारा जो व्यक्ति सबसे पहले मारा जाएगा वह व्यक्ति इस राज्य के राजा के रूप में जन्म लेगा और दूसरा व्यक्ति जो इस फंदे के द्वारा मारा जाएगा उस व्यक्ति का जन्म इस राज्य के मंत्री के रूप में जन्म होगा। राजा इस बात को समझता है और गुरु के प्लान को वह नहीं समझ पाता। वह मिनिस्टर से बात करता है और दोनों यह निर्णय लेते हैं कि अगले जन्म में भी वे इस राज्य के राजा और मंत्री होंगे और वे अपने राज्य को दोबारा खोना नहीं चाहते हैं। इस कारण से वे गुरु और चेले के बदले में अपने आप को उस फांसी के फंदे के द्वारा मारे जाने का निर्णय लेते हैं और इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य का जीवन बचा लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं समाप्त करते हैं। See you with a new lesson. Have a nice day.